we have told that Ansi and Ebin, two lovely children. Ansi in 10th standard, Ebin in 7th. Parents were God fearing. Okay, they used to have faith. They were believers. Okay, then they were hardworking. Okay, sorry, no, not hardworking. They lived in a village and they had a good house. Okay, they were villagers. They had a good house and a big fertile field to cultivate large coconut and mango grove. Okay, what they had in their field? Large coconut and mango grove. ओके विलेज में बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है, सॉइल अच्छी होती है, तो वहां पे ग्रोथ अच्छी रहती है प्लांट्स की. तो विलेज में उनके पास एक लार्ज फील्ड था जहाँ पे कोकोनट और मैंगो ग्रोव्स थे. ओके, मैंगोज भी और कोकोनट्स भी. दे रियर्ड मेनी काउस एंड वेराइटीज ऑफ चिकन. ओके, उनके पास पोल्ट्री भी करते थे. ओके, काउ की रियरिंग और चिकन थे. ओके, हम लोग करते हैं ना घरों में, विलेज में आपने देखा होगा चिकन पालते हैं. ओके, और काउ पालते हैं क्यों? मिल्क प्रोडक्शन के लिए. ओके, तो उनके पास काउ और चिकन ये सब भी था, वेराइटीज में थी. इट वॉज अ हैप्पी होम, बहुत हैप्पीली रह रहे थे वो लोग. द फादर वर्कड हार्ड इन द फील्ड एंड द मदर टुक केयर ऑफ द कैटल एंड होम. Okay, their father used to work in the field. Okay, because he's a man. Okay, he has the strength to do stuffs in field. तो उनके पापा फील्ड में जाके काम करते थे और मदर क्या करती थी? Just a minute. Yes, what did mother do? Mother took care of the cattle at home. Cattle and home. Okay, mother का काम क्या होता है? Usually mothers, home makers जो होते हैं, housewives जो होते हैं, वो घर की देखभाल करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, right? तो their mother also took care of the cattle, the cow and the poultry they had. Okay, तो उनका ध्यान रखती थी मदर. ओके, पापा क्या करते थे? फील्ड में जाके हार्ड वर्क करते थे. द चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स. बच्चे भी उनकी हेल्प करते थे. एंसी एंड एबिन वेर गिफ्टेड चिल्ड्रन. ओके, गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन्स they were a gift to their parents. ओके, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, they don't do any work, but these children, Ansi and Ebin, they were a gift to their parents. Okay, हम बोलते हैं ना gift of God, God gifted. तो Ansi और Ebin जो थे were gifted children. They were studious and hardworking. बहुत अच्छी से पढ़ाई करते थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे. They were loved and appreciated in the school. स्कूल में भी वो बहुत ही अप्रिशिएट करते थे लोगों ने, है ना, उनके उनकी उनकी पढ़ाई के लिए, उनका जो नॉलेज है, ओके, उसके लिए they were appreciated. और सब उन्हें बहुत प्यार करते थे. ओके, The parents were thankful to God for all the blessings they received in life. और पेरेंट्स भी भगवान से कभी कंप्लेन नहीं करते थे, बिकॉज देखा जाए तो दे वर फैमिली. ओके, मतलब सॉरी, दे वर, जस्ट अ मिनट, हाँ, दे वर लिविंग इन अ विलेज. ओके, ओके, माय स्क्रीन हैज स्टॉप्ड. I'll share it again. Okay. Yes. So the parents were thankful to God for all the blessings. ओके, तो पेरेंट्स हमेशा गॉड को थैंक यू बोलते थे. ये हम उनको इतनी ब्लेसिंग दी, इतने बच्चे दिए, अच्छे बच्चे दिए, काम करते हैं, पढ़ते हैं, हार्ड वर्किंग है, तो पेरेंट्स वेर ऑलवेज थैंकफुल. उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया, बिकॉज एज अ बीइंग अ फार्मर दे कैन ऑल्सो कंप्लेन की, क्योंकि फार्मर्स की ज्यादा इनकम नहीं होती है, तो पर उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया गॉड को. एंड दे यूज्ड टू love each other, they used to spend time with each other. Okay, they used to help each other. So they were living a happy life. Okay, they were very grateful to God for the blessings they received in their life. Okay, so Freddie was Ebin's best friend. He lived in the neighboring house and studied in the same class. Okay, there was a boy named Freddie, और वो अबिन का बेस्ट फ्रेंड था. He lived in the neighboring house में ही था, और same class mein they used to study. Okay, Abin and Freddie, they used to study in the same class and they were best friends. Okay, one day there was a fire in the house of Freddie. Abin ran to help his friend. Okay, एक दिन फ्रेडी के घर में आग लग गई और अबिन मदद के लिए दौड़ा. A month later his father met with an accident. Abin went along with his father and Ansi to visit him in the nearby hospital. ओके, आग लगी घर में. ओके,
एक मंथ बाद फादर जो थे, फ्रेडी के जो फादर थे, उनको एक्सीडेंट हो गया. Am I clear to you all? Am I audible? Because I can't see you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Fine. So you are understanding what I am saying. I am making you explain in Hindi. Okay, someone has no book, so you can see the screen. Okay, if you don't have, is this in this class only? Just a minute. Okay, that was another topic. Okay, so where were we? Yes. His Okay, father so met. yes, father met with the accident. Okay, so Abby's father, sorry, Freddy's father, he met with an accident. पहले उनका घर जल गया. Okay, फिर एक मंथ बाद उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया. तो एबिन जो है अपने पापा और बहन एंसी को लेकर हॉस्पिटल गया. किसके लिए? उनको विजिट करने के लिए. फ्रेडी के पापा को विजिट करने के लिए वो हॉस्पिटल पहुंचे. Something kept troubling Ebin on his way back from the hospital. Ebin asked his father, Dad, we thank God daily for all the blessings we receive. Why is our neighbor Freddy's family facing so many problems, one after another? Okay, जब ये तीन लोग एबिन, एंसी और उसके पापा जब हॉस्पिटल से वापस घर लौट रहे थे, तो एबिन को एक चिंता बार बार सता रही थी. क्या थी वो चिंता? कि उसने अपने पापा से पूछा कि डैड, हम रोज प्रेयर करते हैं, रोज गॉड गॉड को थैंक करते हैं, उन्होंने जो भी ब्लेसिंग्स दी है उसके लिए हम गॉड को थैंक करते हैं, पर एबी की सॉरी पर फ्रेडी की फैमिली में ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रेडी की फैमिली बार बार ऐसे प्रॉब्लम्स फेस क्यों कर रही है? वन आफ्टर अनदर उनकी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही है. पहले घर जल गया, फिर पापा का एक्सीडेंट हो गया, है ना? तो अबिन ने अपने पापा से पूछा कि व्हाई इज फ्रेडीज फैमिली फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स? व्हाई डजंट गॉड ब्लेस देम टू? गॉड उन्हें क्यों नहीं ब्लेस कर रहा? तो व्हाट डिड हिज डैड सेड? डैड सेड, माय चिल्ड्रन, गॉड लव्स एवरीवन. He loves us more when we have troubles. And she added her part, narrating the story of Footprints by Mary Stevenson from her lesson. Okay, so उसके डैड ने उसको क्या आंसर दिया? बच्चा, गॉड सबको प्यार करता है ना? गॉड लव्स एवरीवन. ही लव्स अस मोर व्हेन वी हैव ट्रबल्स. जब हम ट्रबल में होते हैं, जब हम हमारी प्रॉब्लम्स होती है कुछ कुछ, तो प्रभु और भी ज्यादा प्यार करता है. क्यों? प्रभु नहीं चाहता कि उनके बच्चे ट्रबल में रहे. प्रभु हमेशा क्या चाहता है? कि उनके बच्चों को हमेशा हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती रहे, हमेशा सक्सेस मिलती रहे ना. प्रभु कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे ट्रबल में हो. तो उसके पापा ने उसको समझाया, गॉड लव्स एवरीवन एंड ही लव्स अस मोर जब भी हम ट्रबल में होते हैं. और एंसी ने भी ऐड किया अपना पार्ट नरेट करते हुए. क्या नरेट किया उसने? एक स्टोरी ऑफ फुटप्रिंट्स बाय मेरी स्टीवेंसन. ओके, एंसी के पास एक लेसन था, उसमें राइटर का नाम मेरी स्टीवेंसन था, और मेरी स्टीवेंसन की एक स्टोरी है फुटप्रिंट्स. ओके, ये एंसी ने नरेट करना शुरू किया. ओके, okay, then we'll take the next page. Just a minute, it's taking too much time because मेरे पास बुक नहीं है. Just a minute, this is very blur. Just a minute, give me a minute, students. Okay, so अभी तक हमने क्या बात करी कि उसके पापा उन्हें समझा रहे थे कि प्रभु सिर्फ एक जने से नहीं, वो सबसे प्यार करता है, और जब भी हम ट्रबल में होते हैं तो प्रभु और भी ज्यादा प्यार करते हैं. ओके, अभी वी रेड पेज नंबर 5. Okay, this is page number 7. Page number
6. Okay, can you see? I'm starting presenting. Can you see? Yes, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay. Then we'll move forward. So Ansi narrated the story of Mary, जिसने मेरी उसका नाम क्या था? Mary. What is written? Can Stevenson. anyone? Yes, Mary Stevenson. Yes. So मेरे पास वो पेज नहीं था इसलिए I asked you. Okay, Mary Stevenson. She wrote this chapter or the story that is footprint. Okay. So एंसी ने वो फुटप्रिंट वाला स्टोरी रिसाइट करना शुरू किया और उसने बोला one night Mary Stevenson had a dream. The dream was uninterrupted and long. Okay, it was splendid too. She saw God holding her little hands and going for a walk on the seashore. तो एंसी ने जो स्टोरी बताई एबिन को, उसमें मेरी स्टीवेंसन जो राइटर है फुटप्रिंट्स की, फुटप्रिंट जो है वो स्टोरी है और मेरी स्टीवेंसन उस स्टोरी की राइटर है। तो मेरी स्टीवेंसन ने ये स्टोरी लिखी थी फुटप्रिंट्स के ऊपर और फुटप्रिंट उस स्टोरी का टाइटल है। उसके बाद मेरी स्टीवेंसन ने उसमें लिखा है कि एक दिन मेरी स्टीवेंसन को एक ड्रीम आया। ओके, सपना आया और उस सपने में वो सपना जो था बहुत ही अनइंटरप्टेड और लॉन्ग था, बहुत बड़ा सपना था और अनइंटरप्टेड मतलब उसमें कोई भी इंटरप्शन, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था बीच में। जैसे कभी कभी हम सपने में से जाग जाते हैं ना, मतलब अचानक से सपना टूट जाता है, पर इनका सपना, मेरी स्टीवेंसन का सपना जो था वो अनइंटरप्टेड था, वो टूटा भी नहीं और वो बहुत लॉन्ग था, बहुत देर तक, बहुत लंबा समय चला वो सपना। इट वॉज स्प्लेंडेड टू, है ना, वो बहुत ही अच्छा सपना था, बहुत लंबा था। ओके, शी सॉ गॉड होल्डिंग हर हैंड्स एंड गोइंग फॉर अ वॉक ऑन द सी शोर। उसने क्या देखा सपने में कि गॉड उसका हाथ पकड़ के, मेरी स्टीवेंसन का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? एक सी शोर, एक समुद्र के तट पर, एक समुद्र की शोर पर गॉड उसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। दे आर हैविंग अ वॉक, है ना, गॉड मेरी को वॉक पे लेके गए हैं समुद्र के तट पर। ओके, ये क्या, ये एक सपना है। ओके, फिर आता है इट वॉज अ लवली टाइम, द सी वॉज काम एंड द बीच वॉज कूल, द जेंटल ब्रीज फ्रॉम द सी गेव अ हैप्पी फीलिंग। ओके, तो मेरी स्टीवेंसन बोल रहे हैं कि प्रभु गॉड उन्हें सी शोर पे एक वॉक के लिए ले गए सपने में, है ना। वो बहुत ही प्यारा सुंदर सा समय था उसके लिए और जो समुद्र था बहुत ही काम था, है ना। बीच में अपन जाते हैं तो बहुत ठंडी 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 हवाएं चलती है ना, कोल्ड ब्रीज होता है और एकदम पानी की जो ठंडक है वो अपन को महसूस होती है। तो वो कह रही है कि सी बहुत ही काम था, लहरें नहीं चल रही थी, बहुत काम सी था, है ना। जब सी में लहरें चलती है तो वो काम नहीं होता है, वो फिर अलग नाम दिया जाता है उसको, बट यहाँ पे सी बहुत ही काम था। ओके, एंड द बीच वाज कूल, ठंडक थी। जेंटल ब्रीज वाज फ्रॉम द सी वाज गेव अ हैप्पी फीलिंग। ओके, जेंटल जेंटल बहुत ही धीमी धीमी हवाएं चल रही थी और वो एक हैप्पी सी फीलिंग दे रही थी। दे वॉक लाइक फादर एंड चाइल्ड विद ट्रस्ट एंड लव। ओके, एक पापा और एक बेटी का रिश्ता अपन सबको पता होगा, जिन घरों में भी, है ना, मतलब बेटी और पापा का बहुत ही स्ट्रांग रिश्ता होता है ना, मतलब बहुत ट्रस्ट होता है आपस में, बहुत प्यार होता है आपस में, है ना। तो वो बिल्कुल ऐसे चल रहे थे जैसे एक पापा, एक फादर और एक डॉटर का रिश्ता हो, जो कि ट्रस्ट और लव में बंधा हुआ है ना, विश्वास और प्यार, है ना। तो बहुत ही सुंदर सा सपना था, इसी से ही हमें पता पड़ रहा है वो चल रहे थे और एकदम पापा बेटी का रिश्ता जैसा लग रहा था। वन बाय वन शी सॉ मेनी इवेंट्स एंड सीन्स फ्रॉम हर लाइफ फ्लैशिंग इन द स्काई। उसने क्या देखा, उसके पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी सीन्स हुए हैं, वो उसने स्काई में ऐसे डिस्प्ले होते हुए देखा, मतलब फ्लैश हो रहा था स्काई में। सब सपना है तो उसको सपने में ऐसा दिख रहा है कि स्काई में उसके जो भी पास्ट इवेंट्स है, जो भी उसके साथ लाइफ में हुआ है, सब एक एक करके फ्लैश हो रहा है, एक एक करके डिस्प्ले हो रहा है साइड में, है ना, स्काई में। तो सम ऑफ द सीन्स वेर हैप्पी वंस एंड द अदर वेर पेनफुल वंस। तो हमारी लाइफ हमेशा हैप्पी भी नहीं रहती, हमेशा पेनफुल भी नहीं रहती, है ना। हैप्पी पेनफुल बीच बीच में ऐसे चलता रहता है ना, कुछ भी ऐसा कॉमन सा नहीं है। तो कुछ सीन्स बहुत ही हैप्पी थे, कुछ सीन बहुत ही पेनफुल वन भी थे। शी हैड मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। ओके, हम सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है ना। हम सब ना ही हमेशा हैप्पी रहते हैं, ना ही हमेशा पेन में रहते हैं, हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है ना। हमेशा हम डिफिकल्टीज भी फेस करते हैं। ओके, हमेशा हमारी जिंदगी में सक्सेस भी आता है कभी कभी। तो इसकी लाइफ में भी
ओके मेरी की लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स थे. अप्स एंड डाउन्स मतलब उतार चढ़ाव, जिंदगी के उतार चढ़ाव, पेनफुल टाइम एंड हैप्पी टाइम्स. ओके there were events which she considered as a blessing from God. कुछ इवेंट्स ऐसे भी थे जो उसने ब्लेसिंग की तरह सोचे थे कि ये सब प्रभु की ब्लेसिंग है. ओके देयर वेर ऑल्सो इवेंट्स विच लुक लाइक पनिशमेंट फ्रॉम गॉड. ओके हम कहते हैं ना कि गॉड अपने बच्चों को पनिश भी करता है कुछ चीजों के लिए जब हम उनका कहना नहीं मानते. तो कुछ इवेंट्स उसको ऐसे भी दिख रहे थे जो कि उसको लगे कि हाँ ये तो गॉड के पनिशमेंट होंगे. The happy scenes and successes in life were counted as the blessing from God. The painful moments and failures were counted as curse from God. Okay. तो जो हैप्पी सीन्स उसको दिख रहे थे स्काई में, जो भी उसको सक्सेस मिला लाइफ में, वो सब उसने ब्लेसिंग की तरह काउंट किया. और जो पेनफुल मोमेंट्स थे, फेलियर्स थे, ओके जैसे हम एग्जाम में फेल होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यार प्रभु आप हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हो, है ना. तो सबको लगता है कि प्रभु हमें कर्ज कर रहे हैं ना, हमें श्राप दे रहे हैं, पर गॉड इज नॉट लाइक दैट. वो तो बच्चों की थिंकिंग है. गॉड लव्स हिज चिल्ड्रन एंड गॉड डज नॉट curse his children. वो कभी भी हमें श्राप नहीं देते. He always loves us and bless us. Okay. So उसको लगा कि वो पेनफुल मोमेंट जो है वो कर्स है गॉड की तरफ से. When happy scenes flashed in the sky, her face was bright and happy. जब happy scenes sky में उस फ्लैश हुआ सपने में, तब तब उसका फेस बहुत ही ब्राइट और हैप्पी फेस हो गया. और जब पेनफुल सीन फ्लैश हुए तब डल और सैड हो गई वो, है ना, दुख छा गया उसके मुंह पे. सडनली शी नोटिस दैट फुटप्रिंट्स इन द सैंड फॉर ईच सीन. ओके सडनली उसने क्या नोटिस किया कि हर एक सीन के बाद उसको एक फुटप्रिंट दिख रहा था सैंड में. शी नोटिस द फुटप्रिंट्स इन द सैंड फॉर ईच सीन. मतलब जो वो स्काई में जो फ्लैशिंग देख रही थी उसके इवेंट्स की, पास्ट इवेंट्स की, उसने नोटिस किया कि हर एक सीन में, हर एक इवेंट में पीछे पीछे सैंड में फुटप्रिंट्स भी है. ओके sometimes there were two sets of footprints and on the other time only one set of footprints. तो कुछ टाइम उसको टू सेट ऑफ फुटप्रिंट दिखा. टू मतलब एक पैर और दूसरा पैर, मतलब दो दो पैर दिखे, है ना, दो दो पैर, PAIR वाला पैर, मतलब पैर वाला वो पांव वाला पैर नहीं, PAIR पैर. ओके सो कभी कभी उसको दो सेट्स दिखे फुटप्रिंट्स के और कभी कभी वन सेट दिखे. ओके अब हम नेक्स्ट पेज लेंगे. जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट. Okay. Just now we read page number 6, right? Can anyone help me with this? This is page number 7. We read now. अभी हमने क्या पढ़ा? Just now we read page number 6, right? Yes, ma'am. Okay, so take page number 7. Take page number 7. Now we'll move forward. Okay, तो अभी हमने कहाँ तक पढ़ा कि उसको फुटप्रिंट्स दिखे, कुछ मतलब उसको किसी किसी इवेंट्स में दो दो पेयर ऑफ फुटप्रिंट दिखे और किसी किसी में एक पैर दिखा. तो she realized that when the scenes were happy they appeared two sets of footprints. तो उसने रियलाइज किया जितने भी हैप्पी सीन्स उसको दिखे हैं ड्रीम में, वहां सब साथ साथ में दो पेयर दिखे हैं फुटप्रिंट्स के, मतलब दो दो सेट दिखे हैं. एंड व्हेन द सीन्स वेर पेनफुल दे अपीयर्ड ओनली वन सेट. और जब सीन पेनफुल थे वहां पे उसने रियलाइज किया कि एक ही पेयर था, एक ही सेट था फुटप्रिंट का. दिस वरीड हर मच. अब वो वरी करने लगी, ये क्या हो सकता है, कहीं पे तो दो सेट दिख रहे हैं, कहीं पे एक सेट दिख रहा है, और जहाँ पे पेनफुल था वहां एक है, जहाँ पे हैप्पी था वहां दो दो सेट है. तो अब हम आगे पढ़ेंगे. शी देन कंप्लेन टू गॉड. उसने गॉड को कंप्लेन किया और बोला, शी सेड, गॉड डिड यू नॉट प्रॉमिस मी दैट यू वुड ऑलवेज वॉक विथ मी इफ आई फॉलोड यू फेथफुली. It meant that you would hold my hands and walk with me in my good times and bad times. Now you walked with me when there were happy events and I see two sets of footprints. तो उसने क्या बोला, उसने गॉड को कंप्लेन किया कि गॉड आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मेरे साथ चलोगे. ओके
तो मतलब आपने कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ चलोगे, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के मुझे साथ चलोगे मेरे गुड और बैड टाइम्स दोनों में। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ गुड टाइम्स के लिए प्रॉमिस किया था, बट आपने बोला था आप हमेशा हर सिचुएशन में गुड और बैड टाइम्स दोनों में आप मेरे साथ चलोगे बोला था, है ना। बट यू लेफ्ट मी अलोन व्हेन देयर वेर सैड इवेंट्स, है ना। मतलब आप हैप्पी टाइम्स में तो मेरे साथ चले और मेरे को 2 फुटप्रिंट्स देखने को मिले, 2 सेट देखने को मिला, बट आपने मुझे सैड टाइम्स में छोड़ दिया and I can see only one set of footprints, है ना। You left me alone when there were sad events and I see only one set of footprints. तो उसने बोला कि आपने हैप्पी टाइम में तो मुझे 2 सेट दिखे, मतलब आप मेरे साथ थे, पर सैड टाइम पे आप मेरे साथ नहीं थे क्योंकि मुझे एक ही सेट दिख रहा था जो कि मेरा था। ओके, जब और सैड टाइम में क्या होता है, व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट, जब मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी तब आपने मुझे छोड़ दिया, तब मैं अकेली थी, मुझे एक ही फुटप्रिंट दिख रहा है। तो गॉड ने रिप्लाई क्या किया? God replied her gently, "It is true that you saw 2 sets of footprints and 1 set of footprints. The times you saw only one set of footprints was when I carried you on my shoulders." Hearing God, she wept in joy. Okay, God ने उसको gently क्या बोला कि जब तुम सही बोल रही हो बेटा कि तुमने 2 सेट्स भी देखा और एक सेट भी देखा, पर तुमने उसको गलत जस्टिफाई किया। ओके, तुमने उसको सोचा कि जब तुम खुश थी तो 2 सेट थे, बट ऐसा ऐसा नहीं है, खुश थी तब तो 2 सेट थे ही, पर जब तुम दुखी थी, जब तुम ट्रबल में थी, तब तुम अकेली नहीं थी। वो फुटप्रिंट्स जो तुमने देखे हैं वो मेरे थे, है ना। मैंने तुम्हें अपने कंधे पे चढ़ा के मैं तुम्हारे साथ चल रहा था उस टाइम, है ना। द टाइम्स यू सॉ ओनली वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स व्हेन आई कैरीड यू ऑन माय शोल्डर। ओके, जब तुमने एक ही सेट देखा फुटप्रिंट का, वो फुटप्रिंट का सेट वो मेरे पाँव थे, गॉड के पाँव थे, जब तुम मेरी शोल्डर्स में थी, मैंने तुम्हें अपने शोल्डर्स में रखा था। हियरिंग गॉड शी वेप्ट इन जॉय, वो खुशी से रोने लगी, है ना। हम खुशी में भी रोते हैं और हम दुख में भी रोते हैं। खुशी में क्यों रोते हैं? ये सोच के कि हाँ, प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, हमारे आसपास के लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। तो वो जॉय में रोने लगी। फॉर देयर वेयर मेनी टाइम्स गॉड हैड कैरीड हर ऑन हिज शोल्डर। तो उसने रियलाइज किया कि उसने जब पास्ट इवेंट्स देख रही थी तो उसमें बहुत इवेंट्स ऐसे थे जहां एक ही फुटप्रिंट था, और तब उसने रियलाइज किया वो सारी जगह पे गॉड उसे अपने शोल्डर पे बिठा के ले जा रहे थे। वो अकेली नहीं थी, गॉड उसे अपने शोल्डर पे बिठा के ले जा रहे थे। ओके, सो पेज नंबर 7 हो गया है। नाउ विल मूव टू पेज नंबर 8, which I guess is the last page. Okay, just a minute. Okay, so the chapter is over almost. I guess you have only 5 pages, 5, 6, 7, 8. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन, तो हमने 7 तक पढ़ लिया है और 8th में अब लेट अस लर्न मोर है। तो इसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला। पहले तो एंसी और एबिन की बात हो रही थी, है ना। फिर उनकी फ्रेडी की बात आएगी, फ्रेडी क्यों इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, उसकी फैमिली में क्यों इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तब एंसी ने ये स्टोरी नरेट की, मेरी स्टीवेंसन की, जिसमें इसने ये देखा था ड्रीम। और इस ड्रीम से हमें क्या मालूम पड़ रहा है, इस ड्रीम में हमें क्या दिख रहा है कि मेरी ने पास्ट इवेंट्स देखे उसके, जिसमें हैप्पी टाइम्स भी थे, सैड टाइम्स भी थे, राइट। और हैप्पी टाइम्स में उसने रियलाइज किया कि हैप्पी टाइम्स में एक ही दिख रहा, सॉरी 2 सेट दिख रहे थे उनको, और सैड टाइम्स में उसको एक ही सेट दिख रहा था पैर का, है ना। लेग्स के एक ही सेट दिख रहे थे फुटप्रिंट्स के। तो बाद में जीसस ने उससे जब कंप्लेन की जीसस से, तब गॉड ने क्या बोला? गॉड ने ये बोला कि वो जो तुमने बोला ये सही है, तुमने जो राइट जो जो तुम्हारे हैप्पी टाइम्स में जो देखा था उसमें 2 फुटप्रिंट्स थे, वो मैं और तुम थे।
पर तुम्हारे सैड टाइम्स में जो तुमने बोला है कि आप नहीं थे मेरे साथ, आपने मेरा साथ छोड़ दिया, वो गलत है, क्योंकि सैड टाइम पे मैं तुम्हें अपने कंधों पे लेके चल रहा था। ओके, तो वो फुटप्रिंट्स जो तुम्हें दिखे, जो सिंगल सेट जो मैं दिखा, जो वन सेट दिखा, वो मेरे थे। ओके, तो हमें क्या समझ आता है जब एबिन ने अपने पापा से पूछा कि फ्रेडी की फैमिली क्यों इतने प्रॉब्लम सफर कर रही है, गॉड उनसे प्यार नहीं करते क्या, गॉड उनकी हेल्प नहीं करते क्या? तब उसके पापा ने क्या जवाब दिया था उसे कि गॉड लव्स एवरीवन, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे ट्रबल में पड़े, है ना? तो जब फ्रेडी की फैमिली ट्रबल फेस कर रही है, उसके घर में आग लग गई, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया, तब प्रभु उन्हें अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। प्रभु अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल दुखी होने ना दे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब फ्रेडी की फैमिली रियलाइज करेगी कि हाँ, गॉड हमारे साथ थे, इसलिए हम बच गए, जिंदा बच गए। हमारे घर में आग लगने के बाद भी हम सब जिंदा है, हमारे पापा का एक्सीडेंट हो गया तब भी मेरे पापा जिंदा है, मेरे पापा जी रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। तो दैट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। हम लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में अगर छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, अगर एक पैर टूट जाए, तो हम सोचते हैं अरे हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बट हम ये नहीं सोचते कि प्रभु ने हमें बचाया है, सिर्फ पैर ही टूटा है। कितने लोग डेली दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, है ना, डेथ्स हो जाती है, बट वी आर अलाइव, गॉड इज विथ अस, है ना? अगर हम में फेथ है, अगर हम बिलीव करते हैं पूरी बिलीफ के साथ, अगर हम प्रेयर करते हैं, तो प्रभु हमारे साथ रहते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते हमें। ओके, प्रभु गॉड कहते हैं बिलीव एंड प्रे इन फेथ। ओके, फेथ के साथ, आस्था के साथ प्रेयर करो। ओके, so this is the conclusion we get from the story. Okay, अब we will learn, let us learn more. God loves you all the time, there is not a single moment God is not thinking of you. प्रभु हमसे प्यार करते हैं, है ना? ऐसा कोई भी सिंगल मोमेंट नहीं है जब प्रभु हमारे बारे में नहीं सोच रहे हो। Like a sick child who gets the best attention of his or her parents, God gives his best attention and care when you need it most. ओके, जब हम बीमार पड़ते हैं तो पेरेंट्स हमें बहुत अटेंशन देते हैं ना, बहुत प्यार देते हैं, हमें बार बार पूछते हैं कैसे हो, ठीक हो ना, खाना क्या चाहिए, खाने में क्या चाहिए, हमारी पसंद की चीजें बनाते हैं। वैसे ही प्रभु हमारे डिफिकल्ट टाइम्स में, गॉड भी हमारी बहुत केयर करते हैं। Troubles, difficulties and pains tell you that you are not left alone, but God is carrying you on his shoulders. तो हमें इस चैप्टर से क्या पता पड़ता है कि ट्रबल्स, डिफिकल्टीज और पेन जब आता है तो उससे हमें क्या मालूम होना चाहिए कि प्रभु ने हमें अपने कंधों पे उठाया है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, बट प्रभु हमें अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। ओके, so if God holds your hand and walks with you in your success, he carries you in your failures too. जब प्रभु हमारी सक्सेस, हमारी हैप्पी टाइम्स में अगर हमारे साथ चल रहे हैं हाथ पकड़ के, तो हमारे बुरे वक्त में प्रभु हमें अपने कंधों पे लेके चलते हैं। ओके, therefore failures and painful events should not disappoint you. मतलब इसका मतलब क्या है? फेलियर्स और पेन वाले टाइम हमें डिसअपॉइंट नहीं करने चाहिए, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए, हमें सिर्फ विश्वास करना है कि गॉड हमारे साथ है। Believe it that God is kind and loving. Sorry, just a minute. Yes, but they should strengthen you because you are in powerful hands of God and in his unfailing care. Perhaps God is molding you stronger through these painful events. तो हमें पेनफुल टाइम में दुखी नहीं होना है, बल्कि क्या होना है, बल्कि हमें हमें ये समझना है कि गॉड हमारे साथ है, उन्होंने हमें अपने कंधों में ले रखा है और वो हमें और स्ट्रांग बना रहे हैं। जब पेनफुल इवेंट हमारी लाइफ में आता है, कुछ भी पेनफुल इवेंट आता है, तो हम और स्ट्रांग बनते हैं, है ना? जैसे सपोज हम एक एग्जाम में फेल हो गए, है ना, सपोज इमेजिन करो हम एक एग्जाम में फेल हो गए, तो हमें एक मोमेंट के लिए बुरा लगता है कि यार मैं फेल हो गया, प्रभु मेरा साथ ही क्यों किया ऐसा। बट अगर हम देखा जाए, हम आगे रियलाइज करते हैं कि उस फेलियर से हमें सीखने को मिलता है, हमें और मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, इस बार मैं पास होऊंगा और इस बार मैं ज्यादा मार्क्स से पास होंगी, है ना? तो हम लोगों को और मोटिवेशन मिलता है, हम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं होना है, हम लोगों को और एक लेसन मिल जाता है। जब पेनफुल टाइम आते हैं हमारे लाइफ में, तो हमें ये समझना है कि गॉड गॉड हमें मोल्ड कर रहा है। मोल्ड मतलब गॉड हमें क्या कर रहा है? गॉड हमें प्रिपेयर कर रहा है
आगे आने वाली सारी चीजों के लिए स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ओके, ये पेनफुल इवेंट्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, ना कि हमें डिसअपॉइंट करके गिराने के लिए। ओके, बिलीव इट दैट गॉड इज काइंड एंड लविंग, ही कैन नॉट डिविएट फ्रॉम हिज बेसिक क्वालिटी। अंडरस्टैंडिंग दिस, थैंक गॉड ऑलवेज फॉर द ब्लेसिंग इन योर लाइफ। ओके, हमें बिलीव करना है कि गॉड इज ऑलवेज काइंड टू हिज चिल्ड्रंस। ओके, हमेशा अपने बच्चों के साथ काइंड रहता है, उनसे प्यार करता है, और वो अपना बेसिक क्वालिटी से डिविएट नहीं होगा। बेसिक क्वालिटी क्या है गॉड की? लविंग हिज चिल्ड्रन, हेल्पिंग हिज चिल्ड्रन, केयरिंग हिज चिल्ड्रन। तो वो गॉड कभी भी अपना मुंह नहीं मोड़ेगा अपने उन कामों से। और अंडरस्टैंडिंग दिस, हमें क्या करना है? गॉड को ऑलवेज थैंक यू बोलना है। ओके, जितनी भी ब्लेसिंग्स हमें मिली है, हमें सिर्फ प्रभु गॉड से मांगना नहीं है कि प्रभु हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमें एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए। हमें प्रभु से सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि उन्हें थैंक यू भी बोलना है ना। हमारी अगर कोई हेल्प करता है तो हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं ना। तो गॉड तो हमारी रोज हेल्प कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज दिस कि जो लोग हमारी हेल्प हमारी रियल लाइफ में करते हैं उनको हम देख सकते हैं, बट गॉड जो है उन्हें हम देख नहीं पाते, है ना। बट वी कैन फील गॉड। अगर हम फेथ में प्रे करें और गॉड में बिल्कुल विश्वासी बन जाए, तो हमें वो फीलिंग रहेगी कि गॉड हमारे साथ है। ओके, तो हमें उन्हें थैंक यू बोलना है। if only you count one by one the blessings and gifts of God with grateful heart, your entire lifetime is not enough to finish them all. अगर हम रियलाइज करें, अगर हम देखें हमारी लाइफ में एक एक ब्लेसिंग अगर हम काउंट करें गॉड की पूरे ग्रेटफुल हार्ट से, पूरे दिल से, तो हमें पता पड़ेगा कि एंटायर लाइफ टाइम इज नॉट इनफ टू फिनिश देम ऑल। अगर हम पास से लेके पैदा होने से लेके अब तक, ठीक है, अब मैं इतनी उम्र में हो गई हूँ, है ना, मेरी इतनी लाइफ मैंने गुजार ली है, तो अगर मैं मेरी पास्ट लाइफ देखूंगी तो मैं गिन भी नहीं सकती। मैं मेरे पूरे लाइफ टाइम में भी मैं प्रभु को इतना थैंक यू नहीं बोल पाऊंगी जितना उन्होंने मेरे लिए किया है। राइट, हमेशा हर वक्त वो साथ रहे हैं। तो तुम अपनी एंटायर लाइफ में भी इट्स नॉट इनफ टू फिनिश देम ऑल, तुम उसको गिन के खत्म भी नहीं कर पाओगे जो प्रभु की ब्लेसिंग्स है। मतलब व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, गॉड्स ब्लेसिंग आर इनफिनिट। ओके, यू कांट इवन काउंट इन योर एंटायर लाइफ टाइम। बहुत ही इन्फिनिट है प्रभु की ब्लेसिंग्स। ओके, बहुत ही ज्यादा है। ओके, सो द चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि इस स्टोरी का मॉरल क्या था। ओके, मॉरल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और उस स्टोरी से एक मॉरल निकल के आता है। व्हाट इज मॉरल? अ कंक्लूजन, कि हाँ इस स्टोरी में हमें क्या पता पड़ा है। तो इस स्टोरी का भी एक कंक्लूजन है कि गॉड कभी साथ नहीं छोड़ता है। अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में, हर वक्त प्रभु हमारे साथ है। और अच्छे टाइम में अगर वो हमारे साथ चल रहा है, तो बुरे वक्त में वो हमें अपने कंधों पे लेके चल रहा है। ओके, डिड यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, Yes, सो Yes, okay, ma'am. fine. So now you have exercise. Okay, that is answer the following. Okay, so answer the following. We have 5 minutes more. Okay, all the class is over. So yes, we can discuss. 5 minutes में ये हो जाएगा. So answer the following में first question है, who were God fearing and devout? Okay, ये सब आपकी बुक में ही है, आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है और वहां लिखना है आंसर नंबर 1, और यू कैन राइट इन योर नोटबुक। ओके, who were God fearing and devout? कौन था God fearing? Their parents. Yes, whose parents? Abin and Ansi's parents. Okay. So the whole family was God fearing and devout. So you can write Abin and Ansi's parents were God fearing and devout. Okay. फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ, आप लोग इसको एक बार रीड करके आप लोग अपनी बुक में अंडरलाइन करना आंसर्स। ओके, सब कुछ आपकी बुक में ही मिल जाएगा, आपको और कहीं से नहीं लाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आंसर डिड एबिन रिसीव फ्रॉम हिज फादर व्हेन ही आस्क्ड व्हाई डजंट गॉड ब्लेस देम? उसके पापा ने उसको क्या आंसर दिया जब एबिन ने पूछा था कि फ्रेडी की फैमिली को क्यों गॉड ब्लेस नहीं करते हैं? His father told God loves his children, है ना। आपके पेज नंबर 5 या 6 में होगा, है ना, 5 में आई गेस, इट्स देयर। आपको मिला सबसे ही नीचे पेज नंबर 5 में आई गेस, इट्स Yes, देयर, ma'am. राइट? Yes, ma'am. हाँ, उन्होंने क्या आंसर दिया? कैन somebody read it out? God loves everyone. He loves us more when we have trouble. वेरी गुड। किसने बोला? हु सेड दैट?
नियति. नियति. वेरी गुड नियति. ओके, सो यू ऑल कैन सी बुक में आपके दिया है पेज नंबर 5 में दैट गॉड लव्स एवरीवन एंड व्हेन वी आर इन ट्रबल ही लव्स अस मोर. तो आपको वो अंडरलाइन करना है, वो ही पढ़ना है. एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2 तो यू हैव टू राइट दैट, अंडरलाइन दैट. वहां पे अंडरलाइन करके उधर लिख दो आंसर नंबर 2, A.2. ओके, आंसर नंबर 2. और आंसर नंबर 1 भी पेज नंबर 5 में ही है. हु वेर गॉड फियरिंग एंड डिवोट? एंसी एंड एबिन्स पेरेंट्स. वो फर्स्ट पैराग्राफ में है शायद, है ना. फिर थर्ड आता है हु डिड मेरी स्टीवेंसन वॉक विथ ऑन द सी शोर. मेरी स्टीवेंसन किसके साथ चली सी शोर में? क्या देखा था, किसके साथ देखा था सपने में? गॉड. ओके. ओके, तो आपको सिंगल वर्ड में लिखना है, सॉरी सिंगल सेंटेंस में लिखना है मेरी स्टीवेंसन वॉक्ड विथ गॉड ऑन द सी शोर. ओके, you understood? Mary Stevenson walked with God on the seashore. Okay. Then fourth answer, what were Mary Stevenson's reaction when she saw the events and scenes from her life? तो मेरी स्टीवेंसन की रिएक्शंस क्या थे? तो ये शायद पेज नंबर 6 में है कि हाँ, आई गेस पेज नंबर 6 में होगा. मेरी स्टीवेंसन का क्या रिएक्शन था? वो बहुत ही वरीड थी जब उसने ये सब कुछ देख लिया. 6th या 7th पेज नंबर में होगा. जब उसने ये सब कुछ देख लिया, ओके, जब उसने सारा इवेंट्स देख लिया, तो उस सब देखने के बाद उसने रियलाइज किया कि हैप्पी टाइम्स भी थे, बैड टाइम्स भी थे. हैप्पी में 1 स्टेप था और बैड में 2 पेयर ऑफ सेट्स दिख रहे थे उसको, 2 सेट दिख रहे थे, है ना. तो उसने रियलाइज किया कि वो बहुत वरीड होने लगी, है ना. उसका रिएक्शन कैसा था? वरीड था. मेरी स्टीवेंसन्स रिएक्शन वाज वेरी वरीड when she saw the events and scenes from her life. ओके, ये बाद का रिएक्शन था. और पहले कैसा रिएक्शन था? जब उसने पहले रिएक्शन देखा था, जब वो गॉड के साथ चल रही थी सी शोर पर, तब उसने देखा. तब यहाँ पे सिर्फ इवेंट्स और सीन्स पूछा है, यहाँ पे हैप्पी और सैड मेंशन नहीं किया. अगर हैप्पी और सैड मेंशन करते तो हम क्या लिखते कि वो बहुत वरीड हो गई. बट इधर पूछा है she saw the events and scenes from her life. उसका रिएक्शन क्या था तब? तो कैसी थी वो? हैप्पी हो गई थी ना. जब गॉड के साथ चल रही थी उसने देखा तो वो हैप्पी हो गई थी, तो her reaction was very happy. ओके, ये भी आपके पेज नंबर 6 में मिलेगा शायद. ओके, तो ये सब आप एक होमवर्क की तरह ले लो. आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर नंबर मार्क करना है आपके पेज में, रिस्पेक्टिव पेज में. यू हैव टू मार्क आंसर नंबर 1, अंडरलाइन करके दिस इज आंसर नंबर 1. ओके, और आपके क्वेश्चन साइड में भी आप लिख देना पेज नंबर 1 के सामने आप लिख देना पेज नंबर 5, 2 के सामने भी पेज नंबर 5. ओके. ओके, आई एम जस्ट डिस्कसिंग. ओके, अब 2 क्वेश्चंस और है, विल डिस्कस इस फास्ट. सो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? व्हाट डिड मेरी स्टीवेंसन कंप्लेंट अबाउट? मेरी स्टीवेंसन ने गॉड को क्या कंप्लेंट किया? दैट वाज इन पेज नंबर 7. क्या बोला था कि गॉड यू आर विथ मी ऑल द टाइम, यू प्रॉमिस मी कि आप मेरे साथ हमेशा चलोगे, राइट. यू प्रॉमिस मी कि यू विल बी विथ मी इन माय बैड एंड गुड टाइम्स, है ना. तो ये था मेरी स्टीवेंसन का कंप्लेंट. दिस इज इन योर पेज नंबर 7 आई गेस, if somebody can confirm. Ma'am, Okay, did you yes. not promise me that? Did you not promise me that you would always walk with me if I followed you faithfully? Yes, It very good, means Mahi. Yes, that's the correct answer. So you can write that paragraph that did you not promise me you will be there with me in my good and bad times. जो भी वहाँ लिखा है, 2-3 sentences you can write. Okay. So this was Mary yes, ma'am. Stevenson's complaint. Okay. Yes. Yes, ma'am. Okay. So answer number 6, question number 6. What was God's reply to her complaint? God ने क्या reply दिया था? That is also in page number 7, I guess. God replied to her. क्या reply किया था? Can anybody read it out? It is truth that you Can you repeat, Mahi? It is true that truth you that you it is true that you say 2 sets of footprints. Okay, your voice is breaking. You are saying एक साथ बोल रहे हो ना, तो voice break हो रहा है. तो पेज नंबर 7 में अगर आपको आंसर मिल गया है तो you can write there. Okay. What was God's reply to her complaint? Just a minute.
Okay, God का reply क्या था? I'll read it out. God replied her gently, "It is true that you saw two sets of footprint and one set of footprint. The times you saw only one set of footprint where when I carried you on my shoulder." है ना? तो God का reply आपको सिर्फ इतना लिखना है. God replied her gently. यहाँ से लेकर when I carried you on my shoulders तक. Okay? Underline that. Till when I carried you on my shoulders. Okay? Yes, ma'am. So that is answer number 6. Okay? So this chapter ends here, I guess. Can you have more questions? Ma'am, fifth one. What happened? Ma'am, fifth में पूरा paragraph है. Fifth, what is the question? Can you read it out? What did Mary Stevenson complain about? Okay, just a minute. I'll tell you what to write. Okay, just a minute. What was the page number? Is it on page number 7? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, I'll take the page number 7. I'll take it. Just a minute. Yes. Okay. So, okay. What was Mary Stevenson complaining about? Okay. She complained to God. She said, "God, did you not promise me that you would always walk with me if I followed you faithfully? It meant that you would hold my hands and walk with me in my good times and bad times." Okay. So you can write up to, you can underline up to, it meant that you would hold my hands and walk with me in my good and bad times. Okay. आपको लिखना है she said से लेकर bad times तक. Okay. Ma'am, Yes. ma'am, fourth one. Okay. What is the fourth question? What was Sorry, can you repeat? What is the fourth question? what did Mary Stevenson react when she said the events are scanned from her life? Okay, so you have to write Mary Stevenson's reaction was very happy when she saw the events. Okay. Then remaining Yes, of the ma'am. question. Okay. Mary Stevenson's reaction was very happy when she saw the events, and the remaining question you can write. Okay, when she saw the events on the beach. Okay. Yes, Okay, ma'am. that's the fourth answer. Any more doubts? No, ma'am. We have to write in copy. See, as your class is not offline, you're online, so I can't check your copy. So you can mark your answers on your textbook for now. Okay. Or else Okay. do one thing. You can write your these questions in your notebooks also for better reference, because अगर आपको एग्जाम में पढ़ना होगा तो आप ऐसे पेज पलट पलट के देखोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा. So these are very short answers, है ना? Only one question is just 1 to 2 to 3 lines only. So just write it down in your notebooks. Okay, write the question and answer. Okay, there are only Yes, 6. ma'am. Okay, ma'am. Yes, Okay, ma'am. fine. No doubts. Yes, ma'am. No doubt. Okay, thank you No doubt. everyone. Now we'll meet in the Thank next you, class. ma'am. Okay, next class, coming class, we'll meet. Thank you for Thank you, today. ma'am. Yes. Bye, ma'am. Bye bye. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Bye everyone. Bye, ma'am. Nice day. Yes. Bye bye. Okay, you can leave the classes. Please don't talk here. Okay, you can leave the classes. And if you have another class in the next few minutes, so you can stay quiet and wait for the another teacher to come. Okay, don't make noise here. Okay. Okay, ma'am. Okay. Bye bye.